Hello everyone, myself Prabhas Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss some more examples on how to write a context-free grammar from a given language. Continuing this lecture with respect to the previous one, this is the first slide which I will show you, that is grammar is a 4-tuple machine, variable, terminal, production rules and start symbol, and a grammar is said to be a CFG if it satisfies alpha driving beta. Alpha belongs to a variable and beta belongs to V union T closer, that is variable or terminal symbol का combination, right. So, now we will discuss about the first example. Ultimately, if we talk about the definition of a context-free grammar is a 4-tuple machine, that is variable, that is non-terminal symbols or uppercase letters, or we can say those letters that are used to generate the string with the help of their recursiveness, right. T is a set of terminal symbols. These terminal symbols are used to derive the string. P is the production rules, which we will write with a combination of variables as well as the terminal symbol, and S is the start symbol from where we have to start writing the production rules, right. So, this is the first question. Here we have to construct a context-free grammar for a regular expression this. As we all are aware that we are writing context-free grammar for both regular as well as the non-regular languages. For the regular languages, we have already seen how to design an FA or how to design or how to write a regular expression. But for non-regular languages, we were not able to design finite automata and write regular expression, because in non-regular languages we have to maintain a count of a variable with respect to the count of previous variable. That is, one classic example of this is a n b n, right. How can we store, how can we maintain a count of a with respect to b, or how can we maintain a count of b with respect to a? So, in order to maintain the count of a and b, that is the biggest reason we were not able to design FA for that. We will be able to design PDA, because PDA has extra space in the form of the memory. There it is using a stack. For by using the stack, what we will do, we will push all the A's into the stack, and once the count of the A's is stored in the stack, with the help of B's, we will pop one A one by one, and until all the A's are popped with the help of B's, we say that this is a n b n, because the count of b which is used to pop a's from the stack will then be equal, and that will show us that is a n b n is equal, right. This is a regular expression now. Here we are seeing that this is 0 1 1 plus 1 closer and 0 1 closer. So, what we will say, this is simply a, this is simply b, right. So, simply a and simply b, what we will do as driving a b, right. अब इस a पे हमने क्या काम करना है, ये वाला पार्ट. a में हमने सिंपल लिखा 0 1 1 a स्लैश 1 a स्लैश नल. ऐसे ही b को हमने क्या लिखा 0 1 b स्लैश नल. What we are saying here, S driving a b is clear to us in concatenation. This b is what? Any number of zeros and ones. So, what we will write for this string 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से स्ट्रिंग्स चल रही होंगी. और ये क्या है, दिस इज अल्टीमेटली 0 प्लस 1 का क्लोजर. तो what we will simply do is 0 1 1 a 1 a slash null 0 1 b slash null. Agreed. So, this is the first question which I have discussed in this lecture. Next is 0 की power I, 1 की power I plus k, 0 की power k. So, now I will expand this 0 की power I, 1 की power I, 1 की power k, 0 की power k, and this is this and this is this, and this is simply a, this is simply b,
So we have simply written is S driving AB. Now next step is, what we will do is, this wala part is written as what? This is 0n 1n, this is 1n 0n. Now next wali thing what we will do is n greater than equal to 0. For this we simply write it as A driving 0 1 A slash null and B driving 1 B 0 slash null. Agreed? So simply we have written this here. Next, construct the CFG for the language this. अब इस लैंग्वेज के लिए CFG बनाने की बात हो रही है. 0 की पावर i, 1 की पावर j और 0 की पावर k. अब k ने क्या कहा भैया, वो i प्लस j से बड़ा होगा. तो k इक्वल टू मान लिया i प्लस j प्लस p है. तो हमने इसको कहा कि 0 की पावर i प्लस k i प्लस j प्लस p. इसको एक्सपेंड करा तो ये होगा 0 की पावर i, 1 की पावर j, 0 की पावर i, 0 की पावर j एंड 0 की पावर p. अब इसको और एक्सपेंड करके हमने लिख दिया 0 की पावर i, 1 की पावर j, राइट. इसके बाद हमने इसको लिखा 0 की पावर j या फिर 0 की पावर p, 0 की पावर j और 0 की पावर i. तो अब आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, आउटर लूप, एक और आउट इनर और ये 0. तो अब यहाँ पे समझ में आया हमें कि ये वाली चीज जो है ये 0i 0i, दिस इज 1j 0j और दिस इज 0p. अब ये तो पढ़ना ही पढ़ना है. p जो है वो ग्रेटर देन 0 होना है. अगर p इक्वल टू 0 हो गया तो k इक्वल टू i प्लस j हो जाएगा. तो अब हमें ये समझ में आया कि इस आउटर को पढ़ेंगे, फिर इनर को पढ़ेंगे. ये आउटर इनर हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन पे पढ़े जाएंगे और इसमें हमें एक ज़्यादा रखना ही रखना है. तो सिंपल हमारा क्या निकल के आया, हमने लिखा s ड्राइविंग 0s0, 0s0. इसकी डिपेंडेंसी बनाई x पे, x 1x0, इसकी डिपेंडेंसी y पे, और y भैया ने कहा 0y0, मिनिमम 0 तो पढ़ना ही पढ़ना है. तो आप देखें सबसे छोटी स्ट्रिंग तो 0 होगी ही होगी, क्योंकि k ग्रेटर देन i प्लस j कहा गया है और i और j अगर हमारे दोनों 0 भी होते हैं तो k तो मिनिमम 0 होना ही होना है. तो एक 0 हो या 2 0 हो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि k सिर्फ एक ही ज़्यादा होगा i प्लस j से, वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है. तो एक सिंगल 0 हो, डबल 0 हो, ट्रिपल 0 हो, उससे फ़र्क पड़ता नहीं है. तो अगर देखें s से x पे गए, x से y पे गए, y वाला बार बार पढ़ते रहे, तो वो जो 0 की पावर p है ना, वो सारे हमने जीरोज उसमें पढ़ लिए. एग्रीड? इसी चीज़ पे दूसरा सिंपल चेंज, वही क्वेश्चन i ग्रेटर देन k प्लस j. अब i ग्रेटर देन k प्लस j पे क्या चेंज क्वेश्चन में आ गया होगा, यहाँ पे ये देख लेते हैं. अब i ग्रेटर देन k प्लस j है तो i को मान लिया k प्लस j प्लस p. ठीक है. अब सिंपल देखें तो 0 की पावर k, 0 की पावर j, 0 की पावर p, 1 की पावर j, 0 की पावर k. तो ये 0 के आउटर लूप चला, ये इनर चला, ये वो रहा. तो हमने सिंपल लिखा 0s0x 0x1, 0x1 हमारा ये हो गया. इसके बाद y, और y में जाके हमने कह दिया जीरोस पढ़ लो कितनी भी एक्स्ट्रा, तो वो हमने जाके जीरोस एक्स्ट्रा सिंपली रीड कर ली. राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब j ग्रेटर देन i प्लस k है, तो j ग्रेटर देन i प्लस k में क्या होगा, 0 की पावर i, 1 की पावर i प्लस k प्लस p और 0 की पावर k. तो 0 की पावर i, 1 की पावर i, 1 की पावर p, 1 की पावर k एंड 0 की पावर k. तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, दिस इज x y एंड z, दिस इज x y एंड z. हमने यहाँ पे x y z लिखा. x में 0 एंड 1n को चलाया, इस वाले पार्ट में हमने सिंपल 1y/0 चलाया. मिनिमम इसको 1y/1, 1y/1,
रन करा और सिंपल इसमें 1z0/null। तो सिंपल अगर यहाँ पे ध्यान दें तो हमने इस तरह की स्ट्रिंग्स को यहाँ पे रन करा विद द हेल्प ऑफ दिस। अब अगर बात करें, हमें कोई कह रहा है CFG बनाओ बैलेंस पैरेंथेसिस के लिए। भाई बैलेंस पैरेंथेसिस क्या होते हैं? ये ओपन हुआ तो ये क्लोज हो, ये ओपन, ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज, कहीं ना कहीं नेस्टेड, या फिर ओपन क्लोज या ओपन क्लोज। दिस इज साइडवेज। साइडवेज हो, नेस्टेड हो, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, दिस इज द बैलेंस पैरेंथेसिस ना। वी टॉक अबाउट दिस साइडवेज एंड ओपन। तो अगर देखूं तो क्या है, ए बी, ए को मैं ओपन मान रहा हूं, बी से क्लोज मान रहा हूं, या फिर इसको देख रहा हूं ए बी, ये मेरा नेस्टेड हो रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को ही मैं बैलेंस पैरेंथेसिस कह रहा हूं। अब सिंपल क्या चल रहा होगा भाई, सबसे छोटा क्या, सबसे छोटा नल, मेरे पास ना ओपन हुआ ना क्लोज हुआ। अब नेक्स्ट, अब मैंने क्या करा, कोई ब्रेसिस शुरू हुआ फिर क्लोज हो गया। अब सोचें, दिस इज ASB अल्टीमेटली इफ वी टॉक अबाउट। ASB है, बार बार एस के अंदर ये पुट करते रहेंगे तो वो ये फॉर्म कर रहा होगा, मतलब ये नेस्टेड बन रहा होगा, राइट। तो हो क्या रहा है, इस एस की जगह नल पुट करूं तो सिंगल ब्रेसेस, इस एस में यही चीज पुट कर दूं, दो ब्रेसेस, दो ओपन दो क्लोज, फिर यही पुट कर दूं, तीन ओपन तीन क्लोज। तो अल्टीमेटली इसका रोल मुझे समझ में आता है। और इस वाले का रोल जो है वो इसको साइडवेज से टैकल करता है। भाई आप नल ले लोगे, नेस्टेड के अंदर नेस्टेड चलते रहेंगे, साइडवेज कैसे मेंटेन होंगे, एस ड्राइविंग SS से ही मेंटेन होंगे ना। तो आपने यहां पे ये प्रोडक्शन रूल लिखा, एग्रीड। नेक्स्ट, अब इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं एनालाइज करूं, इस वाले क्वेश्चन में AI BI ये वाला पार्ट, अब I और J मेरे दोनों 1 से बड़े हैं। तो सिंपल मैं क्या समझ पा रहा हूं, AI BI CJ, this is A, this is B, simply I have written AB. अब now what is this, A and B and, तो what I have written AAB/AB and what I have written CB/C, agreed। इसी तरह से इसमें क्या हुआ, उसने कहा I और J ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए, 0 हो गए, तो व्हाट विल बी द चेंजेस, सिर्फ इसकी और इसकी जगह यहां पे नल और नल आ रहा होगा, ऑल द थिंग्स विल रिमेन सेम एज इट इज, राइट। नाउ वी विल सी अनदर एग्जांपल। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये AI BJ CJ है, मतलब AI BJ and CJ, what will be the change, this is A, this is B, and simply as written AB। A ड्राइविंग क्या होगा, A पढ़े आपने, A में आपने लिख दिया AA/A, और B में आपने क्या कहा, BN CN पढ़ लिया, तो B में लिख दिया BC/PC, राइट। ये हमने यहां पे कंप्लीट करा, राइट। अब ये वाले पार्ट पे हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है दोनों में, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज हटके यहां पे नल एंड नल रिमूव हो गई, एग्रीड। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। A की पावर n, B की पावर 2n, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सिंपल हम जान रहे हैं एक A और दो B, तो व्हाट इट विल बी, AS डबल B A डबल B, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता तो ये नल हो जाता, एज सिंपल एज एनीथिंग। भाई ये रिकर्सिवनेस ही तो मेंटेन कर रहा है A सिंगल और B 2n होने के लिए। इसी का जस्ट अपोजिट कर दूं A2n BN, तो डबल ASB AAB, और अगर ये है तो डबल ASB नल। तो ये बेसिकली 4 क्वेश्चन यहाँ पे AN B2n के या A2n BN के हमने यहाँ पे डिस्कस करे। अब मान लो, अगर इसको और सिंपल तरीके से सोचें, मान लो हमारे पास ये होता AN C B2n, अगर इस तरह के क्वेश्चन होते तो क्या होता, इस तरह के क्वेश्चन होते और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती, तो भाई इसमें सिंपल हम किससे टर्मिनेट हो रहे होते, टर्मिनेट नल से नहीं होते,
इसमें टर्मिनेट हो रहे होते हम ASBB/C, और अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता तब भी हम टर्मिनेट किससे हो रहे होते, ACBB से। तो यहाँ पे भी हमारा सिंपल ACBB सबसे छोटी स्ट्रिंग आ रही होती। एग्रीड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे। कुछ और एग्जाम्पल्स को अभी हम एक एक करके देखते हैं। अब इस स्लाइड पे हमारे दो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें लैंग्वेज गिवन है, उन लैंग्वेजेस के लिए हमें सिंपल CFG लिखनी है। अब हमसे कहा गया कंस्ट्रक्ट द CFG फॉर द लैंग्वेज कंटेनिंग स्ट्रिंग विद एटलीस्ट 2 zeros ओवर इनपुट 0,1। भाई इनपुट 0,1 है, उसमें उसने कहा एटलीस्ट 2 जीरो होंगी, एटलीस्ट 2 जीरो। एटलीस्ट 2 जीरो होना मतलब कम से कम 2 होना। तो हमने कहा ठीक है भाई 1 0 2 0। अब भाई कहीं भी ये बात तो नहीं हुई 1 कितने होंगे, तो और कहीं भी ये बात नहीं हुई कि 2 जीरो से ज्यादा नहीं हो सकते। तो हमने कहा भाई इससे पहले 0 + 1 का कुछ भी कॉम्बिनेशन, इन दोनों के बीच में 0 + 1 का कुछ भी कॉम्बिनेशन, और यहाँ 0 + 1 का कुछ भी कॉम्बिनेशन, ये मैंने यहाँ पे ड्राइव किया। अब इससे मुझे ये समझ में आ गया इस लैंग्वेज से कि हमारे पास एक स्ट्रिंग में एटलीस्ट 2 जीरो की बात हो रही है, तो 1 के बारे में भी तो सोचेंगे और 2 से ज़्यादा जीरो के बारे में भी सोचेंगे। हमने 2 जीरो ले ली, उसके लेफ्ट राइट एंड सेंटर में क्या है उसके बारे में हमें ध्यान देना था। राइट। अब हमने सिंपल इसको क्या मान लिया, हमने ये चीज़ लिखी, इसको हमने माना A, इसको 0, इसको A, इसको 0, इसको A, और हमने इसको यहाँ पे सिंपली लिख दिया। अब A में हमारा क्या आएगा, A में आएगा एनी नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस। A इज 0,1 का क्लोजर, दैट इज 0A 1A / नल, ये आएगा हमारा A में। एग्रीड। A में हमें क्या पढ़ना था, 0 और 1 के सारे कॉम्बिनेशंस। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसने कह दिया एग्जैक्टली 2 zeros। एग्जैक्टली 2 zeros की बात हो गई तो 2 जीरो इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर 1 स्टार, ये सब रह गया यहाँ पे। अब ये रह जाने का मतलब सिंपल हमने लिखा A0 A0 A, और 1 स्टार में 1A / नल, और यहाँ पे हमने सिंपली इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ से दो बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस हैं। हमसे कहा गया कि CFG बनाओ फॉर इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स जिसमें इनपुट में है ABCD विद 2 मिडिल सिंबल्स आर इक्वल। भाई बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, 2 मिडिल सिंबल क्या क्या, AA BB CC एंड DD। भाई इवन लेंथ के सबसे छोटी स्ट्रिंग तो यही है ना। इसके बाद वो कह रहा है इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विद 2 मिडिल सिंबल्स इक्वल। अब इसके इधर और इसके इधर ABCD के कॉम्बिनेशन में कुछ भी होता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बीच के जो 2 कैरेक्टर हैं वो इवन लेंथ के होने चाहिए और दोनों सिंबल सेम होने चाहिए। राइट। तो मैंने सिंपल क्या कहा, जब मुझे भाई सबसे छोटे तो ये हो गए, मैंने AA BB CD को सिंपल लिखा। अब मुझे ये समझ में आया कि इसके इधर कुछ भी हो या इसके इधर कुछ भी हो। अब कुछ भी तो ABCD से कुछ भी हो सकता है, तो मैंने लिखा ASA। अब इस S में AA आ जाए, BB आ जाए, CC आ जाए, DD आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ASA के बाद इसको ASB लिखा, फिर इसको BSA लिखा, सॉरी ASC लिखा और ASD भी लिख दिया। मतलब A के कॉम्बिनेशन सबसे बना दिए, और इस S के अंदर चारों, इस S के अंदर चारों, इस S के अंदर चारों, इस S के अंदर चारों। तो अब आपने यहाँ से यहाँ तक समझा होगा, हमने A वाली सारी पॉसिबिलिटी ली, फिर हमने B वाली सारी पॉसिबिलिटी ली, फिर हमने C की ये सारी पॉसिबिलिटी ली, ऐसे ही हमने D की सारी पॉसिबिलिटी ली। तो ये हमने प्रोडक्शन रूल लिखे उसके लिए जहाँ पे हमारे 2 मिडल सिंबल इक्वल होंगे। अब दूसरा सवाल है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ विद मिडिल सिंबल एज 1।
मिडिल सिंबल 1, इस 1 के इधर और इधर 0,1 के क्लोजर का कुछ भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। 1 के इधर देखा तो 0s0, 0s1, 1s0, 1s1, ये हमने चीज यहां पे रिटर्न कर दी। एग्रीड? तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। नाउ दीज आर द लास्ट 2 or 3 एग्जाम्पल्स। Now we have to construct a CFG for equal number of A's and B's over input this. I have already discussed this example for the derivation tree as well. For equal number of A's and B's, what are the possible solutions? AB, BA, AA, AB, AB, BA, BA, AB, BBA, AB, AB, BA, BA. Ultimately, what is this? This is ABN. This is BAN. These two are palindromes. This is ANBN. This is, sorry, these two are palindromes and this is BNAN. अब इसको हमने कहा सबसे छोटी स्ट्रिंग नल। अब हमें देखना है कि ये सारी स्ट्रिंग्स हमारे कैसे आते हैं। नल अगर मैं पुट कर दूं तो ए बी बी ए भी आ जाएगा, राइट। अब इस एस की जगह यही चीज पुट करूं तो डबल ए डबल बी भी आ जाएगा। इस एस की जगह यही चीज पुट करूं तो ए बी भी आ जाएगा। इस एस की जगह यही चीज पुट करूं तो डबल ए आएगा। इस एस की जगह यही चीज पुट करूं तो बी ए आ जाएगा। अब इस एस की जगह ये वाला पार्ट ले आऊं तो पैलिंड्रोम ये, अदरवाइज पैलिंड्रोम ये एक सॉल्यूशन था। दूसरा सॉल्यूशन क्या है जिसमें हम 3 वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ 1 से ज्यादा होगी, सॉरी स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है, नल नहीं होगी। तो हमने क्या कहा भाई, एस को ए से शुरू, भाई स्ट्रिंग की शुरुआत या तो ए से होगी या बी से होगी। ए को डिपेंड बनाया किसी कैपिटल बी पे और बी को डिपेंड बनाया किसी कैपिटल ए पे, और ए के पास जाके कह दिया स्मॉल ए और बी के पास जाके कह दिया स्मॉल बी, तो हमने ए बी और बी ए नाम की चीज की एक्सेप्टेंस दे दी। अब इसके बाद नेक्स्ट ए बी के पास थे तो अब जैसे बी आया यहां पे तो अगली चीज अब जैसे यहां पे आया ये ए बी है, एस ड्राइविंग ए बी। अब इस बी की जगह मुझे कुछ ऐसा पढ़ना है कि मेरी लेंथ 4 की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो, मान लो डबल ए डबल बी। तो मैंने क्या करा, यहां पे ए डबल बी डाल दिया। इस बी की जगह ए डबल बी जाएगा तो डबल ए डबल बी आ जाएगा, फिर ये दोनों बी पढ़ के इसको एक्सेप्ट करा देंगे। लेकिन ये तो ए से स्ट्रिंग शुरू होने की एक पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट हुई। अब मुझे सोचना है ए बी क्या करेगा भैया, और ए बी ए क्या करेगा। अब ए बी और ए बी ए के बारे में सोचने के लिए मैंने क्या कहा कि ए से बी पढ़ते समय बी से वो पढ़ ले बी एस। अब क्या हुआ, ए बी पढ़ने के बाद मैं पहुंच गया एस के पास, और एस वाले भैया क्या थे, ए बी और बी ए, राइट, ए बी और बी ए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ए बी के बाद बी ए पढ़ने की पॉसिबिलिटी आ गई, और ए बी के बाद ए बी पढ़ने की पॉसिबिलिटी आ गई, और ए बी के बाद बी ए पढ़ने की पॉसिबिलिटी आ गई। तो ये दोनों स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो गई। तो इस तरह से हमने इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज के बारे में लिखा। ऐसे ही यहां पे लिखा ए एन बी एम और एन और एम आपस में इक्वल नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, जब इक्वल थे तो क्या था, एस ड्राइविंग ए एस बी स्लैश नल। जब इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। हमने लिखा ए एस बी, ए बड़ा या बी बड़ा। बड़े होने के लिए एस पढ़ लिए, बड़े होने के लिए यहां पे बीस पढ़ लिए। एग्रीड। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एम के, एन और एम बराबर हैं और एम जो है वो के बराबर या छोटा है। अगर एन और एम बराबर हैं तो कहीं ना कहीं ए एन बी एन सी के बारे में बात हो रही है। दिस इज ए, दिस इज बी। तो भाई अगर L1 लैंग्वेज मैंने इसको माना तो S1 लिख लिया ए बी,
और ए में पढ़ लिए मैंने ए एन बी एन स्लैश नल, और सी में पढ़ ली, बी में पढ़ लिए मैंने सी, राइट। और जब ये एम इक्वल टू के और लेस देन हुआ तो हमने सिंपल क्या कहा कि भाई ए की पावर एन एम और के बराबर हैं या छोटे हैं। तो सिंपल यहां पे बात क्या चल रही होगी कि हमारे जो ये वाले पार्ट हैं जिसमें हम देख रहे हैं ये S2 जो है ये हमारा एक्स वाई जेड हो गया। एक्स वाई जेड होना मतलब एक्स में तो हमने ए पढ़ लिए, एम और के बराबर होने का मतलब तो हमने एम को कुछ बड़ा किया है यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा होगा अगर देखें तो ये चीज निकल के आ रही होगी सी जेड। अब ये वाले पार्ट पे हमने x से ए एक्स स्लैश नल लिखा, y से हमने बी वाई सी स्लैश नल लिख दिया, लेकिन z को हम क्यों लेके आए? क्योंकि हमें ये बताना है कि हमारे पास c ज्यादा है, c ज्यादा है तो हमने लिख दिया आखिरी में सी जेड स्लैश नल। एग्रीड। नल क्यों आया भाई? अल्टीमेटली आपने ए एन बी एम सी एम प्लस के रहा होगा ना, तो ये हो गया ए एन बी एम सी एम और सी के। तो भाई इसको तो पढ़ चुके हो आप ए एक्स स्लैश नल से, इसको पढ़ चुके हो आप बी वाई सी स्लैश नल से, इसको आप सी जेड स्लैश नल कह रहे हो। और नल इसलिए कह रहे हो क्योंकि एम और के बराबर भी हो सकते हैं। अगर एम लेस देन के होता तो यहां पे हमेशा सी ही आता। Hope I have make you clear about the various context-free grammars from a given language. Now we can simply write the CFG for the languages. These are the references which I have gone through. Thank you everyone.